Wonderful. She welcomes you all, and I have welcomed each one of you all out here. But a formal welcome and a thank you is in due. Yes, ladies and gentlemen, to do the honor, I would now request to call on the Managing Director of Atman Innovation, Mrs. Ami Trivedi, who would take you forward with this gathering as she welcome and thank each one of you all out here. Woo! Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Atman Innovations, I welcome you all here today as we celebrate I Am Krishna, the book authored by Deep Trivedi and published by Atman Innovations. It indeed gives me a great pleasure to announce that our earlier release, I Am the Mind by Deep Trivedi and published by Atman, has been a huge success. And this success wouldn't have been possible for all of you sitting here, that is Prakash Books, the leading chain of stores Crossword, and all other bookstores across the country. The success that book has gained is, even after 1 year, the book stands as the bestseller across the country. And in the latest data received from Crossword this week, suggests that the book is still the most successful bestseller in non-fiction category. And I owe it to you. Thank you very much. And with numerous interesting releases lined up this year and in the future, the support and the cooperation that we have had from you in the past, we look forward to receive the same in the future also. And I'm sure together we as a team will make Krishna, I Am Krishna by Deep Trivedi, a much greater success. Thank you very much, and I hope you all have a great evening. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for all your kind words as we welcome and thank each one of you all once again from the bottom of our heart. Ladies and gentlemen, it's a process where we give a small token of appreciation and gratitude for turning up and marking this glorious evening with their glorious presence. Ladies and gentlemen, I would like to call Mrs. Ami Trivedi once again on the stage as we go ahead in felicitating one such dynamic personality here on the stage, Mr. Rajaram Ravul from Prakash Books, India Private Limited. I request Mr. Rajaram Ravul to kindly come on the stage as we felicitate you and thank you from the bottom of our heart for being such a great strength and support to Atman Innovations. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Well, ladies and gentlemen, now I may request that individual personality, that dynamic personality who has this great renowned voice of India that has echoed in all our ears for several years and popularly known as the voice of Samay from B.R. Chopra's Mahabharat. Ladies and gentlemen, he's an artist. He's an author, he's a writer, he's a corporate filmmaker, a proud winner of President's Medal in the National Film Awards 2016. Ladies and gentlemen, बेशक ऐसे शख्स हैं वो जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और ये मैं वाक़ई के साथ कह सकती हूँ कि आप सब लोग यहाँ जो बैठे हैं उनको बखूबी जानते हैं, उनके नस नस से पहचानते हैं. Ladies and gentlemen, he is the one who's considered to be one of the most India's recognizable voice, or should I say, a writer with a zing. Ladies and gentlemen, it is my honor as I now call on stage none other than Mr. Harish Bhimani ji. Sir, may I please invite you on stage और इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, Mr. Harish Bhimani ji. Along with, I would like to call Mrs. Ami Trivedi kindly to come on stage as we felicitate our gentleman here on the stage with a small token of appreciation. Thank you so much, sir. We are pleased to have you amongst us. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you so much, sir. जाहिर सी बात है आज हमारे बीच एक ऐसे हस्ती यहाँ पे मौजूद है और ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप कुछ कहें, हमें खुद अपने कानों से सुना है. So I request you, sir, to kindly say some few phrases from the book I Am Krishna and make Krishna who in your golden epic voice.
Namaskar. Thousands upon thousands of very kind people of this country and the Indian diaspora around the world have praised my tagline, "Main Samay Hoon." And they made me believe that there was going to be nothing beyond it. Never did I believe that. And today it's been proven in ample measure that the ultimate is, I am Krishna. And we have Deep Trivedi ji to thank. It is an understatement to say that this is a very interesting, enlightening, elevating book. There are some excerpts we have chosen. Here, Krishna is speaking to himself, and this excerpt brings out some little-known facts or aspects of the immortal Radha-Krishna love. He's talking to himself. He says it was amazing. Until just a few days ago, I had not even known Radha, and now I could not imagine living without her. Really, how did all this transpire, and so fast? Perhaps the spark was ignited at the very moment our eyes met for the first time. But how did it happen? How did I get smitten by her, despite such a huge difference in our ages? This was the question troubling me day and night. But I was so immersed in Radha's love that I could not even contemplate this issue. My mind just refused to think about anything but Radha. But for how long could this continue? I had to unravel this mystery, why I had become so enchanted by Radha at such a young age. Finally, one night, the mystery unraveled itself. Actually, I think it was because my mind was unblemished. And on that pristine mind, when a woman ever so sweetly etched the words, "My Kanhaiya," for the first time, it was but natural, for it had to be flustered. So in short, it was my unblemished mind and my immaturity which were entirely at fault. But then, how can I term this a fault? It was a blessing bestowed upon me, thanks to my untainted mind. For at present, what did I possess other than Radha's love? I had long since forgotten everything else but my love for her. In fact, now she had even begun to groom and dress me up. I too had surrendered myself completely to her. I thoroughly enjoyed whatever she did to me. Radha liked the color yellow. So, as you know, Pitambar. Radha liked the color yellow, so it now became the predominant shade in my attire along with the pink hues. Not only that, Radha had categorically instructed me not to braid my hair. Perhaps, in her view, the braids looked too childish. And as her wish was my command, I made sure that my curly locks were left open and I never braided them again. I must admit that, to some extent, it did give me a mature look. Moreover, Radha had even taught me to tie a waistband and had decided that my flute would be placed there at a rakish angle. But yes, she did not meddle with the peacock feather adornment in my hair.
Thus, Radha's Kanhaiya was now ready in his new look. Needless to add, for the rest of my life, my style of dressing revolved around this new look that Radha had fashioned for me. And my life revolved around Radha. And that's why the world, for posterity, was going to utter her name before mine, Radhe Krishna. All those who know so much about Krishna and even more about the Mahabharata, and even the person who narrated the entire Mahabharata, had never known that Devaki ji and Yashoda ji, the two mothers of Krishna, ever met. इस पुस्तक में वो प्रसंग भी है कि जहाँ ये दो मिलती हैं। एक दिन दोपहर की बात है। फूल फल वगैरह तोड़कर हम लोग, अब ये कृष्ण की किशोरावस्था है, कोई 9-10 साल के हैं। एक दिन दोपहर की बात है, फल वगैरह तोड़कर हम लोग एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी अचानक मेरे लिए नंद बाबा का बुलावा आया। मुझे उनके अचानक बुलावे का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनका बुलावा था सो जाना तो था ही। वैसे जाते समय एक बार सोचा भी कि कहीं कोई नई विपत्ति तो नहीं आ गई, लेकिन सब कुछ तो ठीक चल रहा था, चलो चलकर देख लिया जाए और क्या। उधर ज्यों ही मैं पहुंचा तो देखा कक्ष में पिताजी, माँ यशोदा व माँ रोहिणी तो बैठे ही हुए थे, पर मेरे परम आश्चर्य के बीच उनके पास ही वसुदेव जी भी और देवकी जी भी विराजमान थे। वसुदेव जी से तो मैं पहले मिल चुका था, लेकिन माँ से ये मेरी पहली भेंट थी। फिर भी माँ माँ होती है, मुझे पहचानने में देर न लगी। मैंने तत्क्षण दोनों के चरण छुए। उधर तुरंत मुझे चरणों से उठाकर गले लगाते हुए वसुदेव जी ने माँ से मिलवाते हुए पूछा, पहचाना इन्हें? ये तुम्हारी माँ देवकी है। देवकी जी तो मुझे देखते ही पागल हुई जा रही थीं। अधीरता की चरम सीमा तो ये कि उन्होंने मेरा हाथ खींचकर मुझे गले से लगा लिया। माँ के गले से लगकर मैं भी धन्य हो गया। I know Deep only since last around 2 years or maybe 2.5 years, and mine and Deep's relationship began as a patient-doctor relationship. Deep had some small pain in the neck, and Ami said, Deep, we have to consult Dr. Prashamsha for your neck problem. And my luck prevailed that Deep said yes to it. He now usually never goes to any doctor. He treats himself very well. And I think he's quite capable of doing that. But still he said yes, maybe that was a call from a God. For me, it was my own privilege, my own luck. And he entered my cabin. And when I saw him for the first time, it was like a love at first sight. Please don't misunderstand me. No, it was not like a dostana kind of love. But it was really that aura, that positivity of the man really engulfed me. I really liked that man suddenly, and my consultation got over in just 10 to 15 minutes, but then we talked for 45 minutes to 1 hour on just spiritual psychology. And I tell you, I have not seen such a master person who has such a deep knowledge on a psycho-spirituality. And this is his real mastery by which he is really helping the mankind by devoting his own self in giving this wisdom to the people. Today it's a book launch on I Am Krishna, and I have read this book, and I was lucky and I was privileged again because of Ami, I would say, that I have all his books which are unedited version. So I have been able to read these books, and in between the lines when I read, I realize that there is so much of wisdom filled in these books. I don't know how this man can write such a beautiful thing in such a beautiful way, because I felt
Krishna is not a textbook. It's a song. It's a music. It's a real river flowing in a smooth way. The first page you start off and how Harishji beautifully narrated few of the paragraphs. It just flows so beautifully. And I have read his I Am Mind. I've read his Everything is Psychology. I've read his Time and Space. They are all mind-boggling books. I would say it's not only mind-boggling, it's character-transforming books. I mean it that you people, once you read all these books, you will feel that you are really changing your own character. I know, you know, every one of us know that we have a Krishna in us. One Krishna is always lying in us, but it's dormant. It's sleeping. It's not active. It's Deep's and his hard work, his dedicated work, his lectures, his writings, his CDs and DVDs. These are the things which is really capable of awakening that Krishna in you. He will bring out that Krishna in you. He will really make your Krishna alive. And I really mean and I really wish him all the best in his entire endeavors in this noble cause, this noble work of uplifting the mankind. Thank you very much, Doctor. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your knowledge, your experience, what you really felt, especially when you looked at him for the first time. Love at first sight. Thank you so much for letting us know about it. Well, ladies and gentlemen, अब मैं बुलाना चाहूँगी Mrs. Rashmi Shah, who has attended his lectures, was a patron on Deep Talk Show, and even joined the Atman Innovations. Definitely, she has seen this transformation, and we all have seen this transformation in her life. One of our core members, ladies and gentlemen, who herself is a classic example of transformations. Ladies and gentlemen, please put your hands together as I call on stage Mrs. Rashmi Shah. Hello, ma'am. Hello, everybody. I know we are running short of time, so I think I'll just give the most important thing that I have experienced with Deepji is I've had a journey of nearly more than 25 years of learning a lot about spirituality and psychology. You name it, and probably I have read it, and have tried it, and experienced the good and bad about it in my life. And it so happened that 2 years back, when his lectures of Tao Te Ching and the Mind series in ISKCON was going on, that was the first time I came to listen to him. First thought of mine was, इतना कुछ पढ़ लिया है, अब और सुनने के लिए क्या बाकी है? It was so much that I had filled in my life. And then, as the Tao Te Ching lectures went on, there were some beautiful insights that I received through his lectures. And I got inspired to read his book, I Am the Mind. Why I would say I Am the Mind is very special. I have always gone through a conflict of voices within me all my life. I mean, I can remember my childhood, teenage, you name it, and I have had a conflict where one of the thought, we always say whatever the voice we hear is all thoughts. That is what we have defined that sound that comes within us. And I had always thought probably I have a split personality. One says this and the other one says that. But when I read his book, he has clearly gave us the difference between the brain and the mind. And it was so beautiful that I started identifying that yes, because he has also given, when this kind of a thought comes to you, what is it? Is it from the sphere of mind or is it from the sphere of brain? And I started identifying them, and gradually I realized that a lot of conflicts gave away. That was so beautiful. And when I look back, I have always been confused many a times
decision making has been very, very difficult for me with the kind of conditioning we have been brought in. I also come from a background, family, where there's a lot of spirituality, but also religion aspects are there. And we are bound by them. But fortunately, when I listened to him, and at the same time, I got an opportunity to join his mission of human upliftment. And gradually, the unlearning started. Now I understand what Ramakrishna did to Vivekananda. I wouldn't say it's the same, because but I can understand what it is. And when the process of unlearning started, I realized that things were getting simplified. I have read so much, and I was wondering, what are these people writing? Why isn't it in practice? Why can't I see it around me? But it happened in my experience. And gradually, I'm still in the journey of unlearning. And I really, really thank Deepji from the bottom of my heart that it has been a privilege for me to know him and work so closely with him. A man with so much of passion and dedication, very few to find. I think most of us live in this life with lot of masks. We behave like this, we have so many conditioning, but this man comes so very pure, and I have seen a lot of aspects of him while working with him. Very generous. As Prashamsha ji said, it's true. I would just extend that. It is so true. It is a privilege for all of us at Atman team and the close friends, I'm sure everybody knows that it is, as you meet him and when you speak to him, we come to know that yes, this is it. And he brings in a lot of courage in us to live what we want to live for. And I have experienced that my journey is so focused because unwanted has just shut it off. And I'm so happy. I think the most beautiful gift that I have today as a human being is not being burdened by all the so-called knowledge that we say. And one more extension of Deepji, I know I'm running short, but I need to mention this, that he exactly knows the other person and he helps that person so beautifully in every aspect of life. His books, his lectures are not just like, yes, we have, there are so many lectures. I think he could just take rest and it's okay. He's done enough, I would feel at times. And I always ask him, why are you doing so much? Is it all worth it at the end of the day? But he says, no, that's his. And you should see the way he works. We can't cope up. Atman team knows that he works. I think the speed of light is also probably less. It's so difficult to cope up with him in work. And as you know, Prashamsha is one of the most privileged one to read those unedited version of Deepji's books. And he is right. Even I have read a few of them. So I would request one and all to kindly, because I Am the Mind is one of those books which it's a mirror for you. You will know yourself better. All his work will just give you the light. I would say he's not a torchbearer. I think he ignites the light within you. You have it all. We all have it. But he is the one, when you listen to him, you have that courage to go within and see yourself. And you're okay, even if you're angry, anything. There is no right, wrong, no good, bad. And it is so beautiful that you don't even have to judge yourself or be such a bad critic for yourself. I'm sure everybody's waiting for Deepji to meet him. So thank you so much
for everybody to come here, and thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Mr. Shah. We know that there was so much more to speak about. I'm Krishna, the master of mind and life, and of course the renowned daughter, Mr. Deep Trivedi. And we could just smell that, sense that from her enthusiasm, because she's the one who's attended a lecture, she's witnessed it, she's there, she's been there, and she has seen that, and she's felt that. So we know there was so much more to go ahead. But of course, time is running out. And now, ladies and gentlemen, I would like to call one dynamic personality. Of course, definitely उनको कोई introduction की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और मैं जानती हूँ कि आप उनको देख के ही पहचान जाएंगे. Yes, ladies and gentlemen, a very dear patrons of Deep Talks, ladies and gentlemen, a popular face known as Lali from Agle Janam Mohe Pritya Hi Kijo and Santoshi Ma, the two popular TV soaps, ladies and gentlemen. She has a spiritual facet to herself, which many of us are unknown. And yes, ladies and gentlemen, today we thank her enough to be here amongst us. Ladies and gentlemen, zordar taaliyon ke saath, let us now call on and invite on stage Ratan Rajput. Ratan Rajput ji, Ratan ji, please, may I have you on stage? Kindly share some few words, your experiences for I'm Krishna and Deep Trivedi ji. मैम आप परमिशन चाहूँगी, क्या मैं बैठ सकती हूँ? थैंक यू सो मच. ये काम कर रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? थैंक यू. तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आज की शाम बड़ी ही ख़ास है, क्योंकि आज एक तो बुक लॉन्च होने जा रहा है, और उससे भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि आज हम इस बुक के बारे में दीप जी के साथ बैठकर कुछ बातचीत भी करने वाले हैं. ये बुक अपने आप में बहुत उत्सुकता जगाता है, बहुत सवाल जगाता है. मैं अपने आप को क्वेश्चन मार्क कहती हूँ दीप जी के सामने आते ही, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं मन में. मुझे लगता है आप लोग के भी मन में इस किताब को लेकर काफ़ी सवाल होंगे. कृष्णा की अगर बचपन की कहानी देखी जाए तो कुछ और ही कृष्णा का चेहरा दिखता है. उनकी लीलाएं जो हम देखते हैं, मुझे लगता है कि उससे कृष्ण कुछ और समझ में आते हैं. और अगर कुरुक्षेत्र में हम जाते हुए कृष्णा को देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल कृष्ण अलग रूप में नज़र आते हैं, जहाँ वो भागवत गीता का संदेश देते हैं. तो मैं बड़ी कंफ्यूज रही हूँ कृष्ण को लेकर. प्रेम में बहुत रही हूँ कृष्ण के, लेकिन सवाल से जूझती रही हूँ कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्या सोचकर किया होगा. कंफ्यूज किया है उन्होंने मुझे. तो जो मेरे मन में उत्सुकता थी कृष्णा को जानने की, शायद उस उत्सुकता के कारण मैं दीप जी से मुलाकात कर पाई. स्कॉन टेम्पल में हमारा पहला मुलाकात था. मैं वहाँ कृष्ण के दर्शन के लिए पहुँची, और कृष्ण ने मुझे दर्शन करवाए दीप त्रिवेदी जी के. ये एक्चुअली मैजिक था मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ बैठ कर के यही पूछ रही थी कि क्या है लाइफ. मैं आपको समझना चाहती हूँ, पर गीता मुझे समझ नहीं आता. एकमात्र ज़रिया है आपको समझने का गीता, जिसको मैं रोज़ अपने मंदिर में फूल चढ़ाकर, अक्षत चढ़ा के पूजा करती हूँ, और मैं खोलती हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता. मुझे इसको समझने के लिए हेल्प चाहिए. और जिस दिन मैंने इस हेल्प की अंदर से कामना की कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे पता चला कि एक दीप टॉक्स हो रहा है जो कि इस्कॉन के ही ऑडिटोरियम में हो रहा है. तो मैं बस अपनी पूजा पाठ ध्यान करके वहाँ पहुँच गई. और मैंने जिस दिन पहली बार दीप जी को सुना, मुझे लगा कि उनकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक है. उनकी बातें गोल गोल घूमी हुई नहीं, बड़ी सीधी आकर मन को लग रही थी. और आम जिंदगी की छोटी छोटी बातों को उदाहरण के रूप में देकर वो बड़ी बड़ी बातों को बड़े अच्छे से समझा पा रहे थे, जो कि उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. मैं एक एक्टर हूँ, बहुत ही नकली दुनिया से बिलोंग करती हूँ. ओके, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं एक एक्टर हूँ और बहुत ही नकली दुनिया से बिलोंग करती हूँ. हम बहुत नकली चेहरा दिखाते हैं लोगों को, लेकिन नकली चेहरा दिखाते दिखाते हम कब उस नकली दुनिया में ट्रैप हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता. जिसको आप लोग कई बार डिप्रेशन का नाम देते हैं, कई बार आप कन्फ्यूजन का नाम देते हैं. तो बिल्कुल मैं भी उस फेज से गुजर रही थी. सब कुछ पाने के बाद मैं एक उस जगह पे पहुंच चुकी थी जहां मुंबई आने के बाद हर एक एक्टर का सपना होता है, पर एक खालीपन था.
और उस खालीपन में सवाल जन्मने शुरू, मतलब अभी अभी पैदा होना शुरू हुआ था। मैंने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को कि प्लीज़ गाइड मी। उस गाइडेंस के थ्रू मैं इस्कॉन पहुंची। शायद इस्कॉन में मुझे दीप जी से मिलना था इसलिए, और वहाँ दीप जी की 1 टॉक, 2 टॉक, 3 टॉक, मैं ऐसे एक के बाद एक सुनती गई। मेरी ज़बान से कभी कोई सवाल नहीं निकले, क्योंकि मेरे मन में जो सवाल मैं लेकर जाती थी इत्तेफाकन उनकी बातों में वो जवाब मुझे मिल जाता था। और इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मैंने लाइफ को एंजॉय करना सीखा। मैं जिस मुकाम पे पहुँची, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे पहुँची। मैं पटना बिहार की लड़की हूँ, बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी, कुछ भी एम नहीं पता था। आई डोंट नो हाउ मैं यहाँ कैसे पहुँची। उस वक्त कंफ्यूज थे, लेकिन जब दीप जी से मिली तो मुझे पता चला कि मेरी जर्नी कैसे हुई है। जब मैंने उनकी किताब पढ़ी मैं मन हूँ, तब मैंने खुद को जाना, अपने मन को पहचाना, और मुझे लगा कि अपना जो मन है, जो हम कहते हैं अपने अंदर जाना, वो क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। मैंने बड़ी बड़ी बातें बहुत पढ़ी थी, पर इम्प्लीमेंट करना सीखा मैंने दीप जी से मिलने के बाद। और कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ख़ास जगह रखते हैं दीप त्रिवेदी जी, क्योंकि मैं अब ज़िंदगी को एंजॉय करना सीख गई हूँ। ऐसा नहीं कि परेशानियाँ नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अब परेशानियों से सामना नहीं करती, लेकिन करती हूँ, उसमें क्वालिटी चेंज हो गया है। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कृष्णा के दर्शन के लिए कृष्ण मंदिर नहीं जाती, बल्कि अगर मैं खुश हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण के बहुत नज़दीक हूँ। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण के बहुत नज़दीक हूँ। हर चीज़ में एंजॉय करना मैं सीख गई हूँ। जैसे अभी आप देख लीजिए, ये काम बहुत भारी है, इतने लोगों के बीच में माइक लेकर बोलना बहुत टफ काम है। एक एक्टर होते हुए भी मैं बहुत इग्नोर करती हूँ कि मैं पब्लिक को फेस ना करूँ, पर मैं आज यहाँ बैठकर आप लोगों से बातें कर रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मैंने दीप जी को बहुत सुना है। और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी बातें हैं जो मैं कह रही हूँ, ये हर इंसान एक्सपीरियंस करता है जो दीप जी को सुनता है। तो इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो पूरी रात निकल सकती है। तो हम शॉर्ट में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बुक को लेकर, जब मैंने ये बुक थोड़ी सी अभी पढ़ी है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए। ऑफ कोर्स आप लोग के मन में भी सवाल आ रहे होंगे, और ख़ास करके ये सवाल कि मैं कृष्ण हूँ इस किताब में अलग क्या है, ख़ास क्या है। तो इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, हमें इस सवाल का जवाब दीप जी से पूछना चाहिए। और दीप जी को स्टेज पर बुलाने के लिए मैं एनी को रिक्वेस्ट करूँगी। ओके जी ज़रूर मैम। अभी हम हमारे ग्रेट रेनाउंड ऑथर, सिर्फ ऑथर ही नहीं पर एक बहुत ही शानदार स्पीकर और एक ग्रेट पर्सनालिटी, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं उनको बुलाना चाहूँगी। पर इसके लिए आप सबको ज़ोरदार तालियों के साथ पूरी गूंज में, पूरी होश आवाज़ में बुलाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल ऑन मिस्टर दीप त्रिवेदी। दीप त्रिवेदी जी का हम यहाँ पे स्वागत करेंगे, जो आज अपनी सेकेंड बुक को यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। I am Krishna, the master of mind and life, the patron, the one who studies human closely. Ladies and gentlemen, let's huge round of applause. Let's put it up for him, Mr. Deep Trivedi on the क्या बात है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी मेरी निगाह हरीश जी पे पड़ी। एक ही कृष्ण है, एक ही गीता है, एक ही रफ़ी साहब है और एक ही लता जी है, एक ही गालिब है, एक ही कबीर है, वैसे ही एक हरीश भिमानी जी हैं। इनकी आवाज़ का जादू न जाने कितने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच हरीश जी। तो दीप जी, अभी हमने काफ़ी बातचीत आपस में कर ली है। क्या बात है जी, और अब सब लोग उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए।
और मैं उससे भी ज़्यादा उत्सुक हूँ आपसे कुछ सवाल करने के लिए। आपको देखते ही मुझे बहुत सारे सवाल मन में आ जाते हैं। अच्छा, माइक में प्रॉब्लम है, ओके। तो क्या मैं सवाल का बौछार कर सकती हूँ या थोड़ा आपको अभी राहत दूँ और बातचीत करने का मौका दूँ? नहीं नहीं, सवाल शुरू करते हैं, जो मन में आए वो पहले कर लेने का। अच्छा ठीक है। तो पहला सवाल मेरा है कि कृष्ण पर इतनी सारी किताबें आ चुकी हैं, तो आपकी किताब को आप बाकी किताबों से अलग कैसे देखते हैं? अब कृष्ण जैसा व्यक्तित्व होगा तो किताबें तो आएंगे ही, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई एक ऐसा ग्रंथ या शास्त्र नहीं है जिसमें कृष्ण का जीवन लिखा हुआ हो पूरा। कई शास्त्र हैं जिनमें टुकड़े टुकड़े में यहाँ वहाँ लिखा हुआ है, और यही एक कारण है कि सबसे पॉपुलर व्यक्तित्व होने के बावजूद भी कोई भी कृष्ण के बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं है आज तक भी। सो मैंने उपलब्ध तमाम शास्त्रों की रिसर्च करके और उनकी पूरी लाइफ को पिरोया है, पूरी लाइफ, जन्म से लेकर विदाई तक की, और साथ में उनके व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व दिया है, उनकी साइकोलॉजी को, कि कृष्ण ने कब किया, क्या किया और क्यों किया, और ये जो क्यों है वो इस किताब की मुख्य विशेषता है। तो मतलब हम अगर बहुत सारी किताब को ना पढ़कर सिर्फ एक आपकी ये किताब पढ़ें तो हमें उनकी पूरी कहानी पता चल सकती है। कहानी भी, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, साइकोलॉजी कि क्यों, जी, सारा खेल क्यों का है। बिल्कुल। तो अगला सवाल भी क्यों से ही जुड़ा हुआ है। इस किताब को लिखने के पीछे आपका मकसद क्या है? मेरे किसी भी कार्य का मकसद एक ही होता है कि किसी तरह से मनुष्य को फायदा हो जाए, किसी भी तरह से। और मनुष्य का सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी चीज से हो सकता है तो महान व्यक्तियों के जीवन को पढ़कर, समझकर, उनकी साइकोलॉजी समझकर, बस। सो मैंने कृष्ण का व्यक्तित्व पूरा लिखा क्योंकि कृष्ण एक परफेक्शनिस्ट है, संपूर्ण है, मास्टर है। यदि मनुष्य उनका जीवन और उनकी साइकोलॉजी समझ ले तो महान से महानतम होता चला जाए। तो उद्देश्य कृष्ण नहीं है, उद्देश्य मनुष्य है कि उनका जीवन बने, बस कृष्ण के बहाने ही सही। मुझे लगता है हम सबको थैंक यू कहना चाहिए दीप त्रिवेदी जी को, क्योंकि ये लिखा हमारे लिए गया है और हमारे फायदे के लिए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या कृष्ण का संपूर्ण जीवन इन शास्त्रों में उपलब्ध है? करीब करीब, यदि सब शास्त्रों को ठीक से पिरोया जाए जी, तो उनका पूरा का पूरा जीवन उपलब्ध है, करीब करीब। और मैंने इस किताब में उनका पूरा जो जीवन है वो साइकोलॉजिकली पिरोया है और उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखा है, यानी जन्म से विदाई तक, और जहां जरूरत पड़ी है उनकी उम्र भी लिखी है। अब दिक्कत यह है कि कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे शायद भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उपलब्ध है। मैं गलत कह रहा हूं? और फिर भी शास्त्रों में उनका जीवन काफी कुछ उपलब्ध है, उसके बावजूद, समझना इस बात को जो मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद कृष्ण के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। सबको मालूम है कि बड़ी तकलीफ में जीवन गुजारा उन्होंने बचपन में, ग्वाले थे, है ना। गांव की बस्ती बमुश्किल 500,000 थी। कंस की दी गायों पे, कंस द्वारा दी गई गायों पे, भैंसों पे गांव पलता था। वो कृष्ण द्वारका, सोने की नगरी द्वारका के राजा बने। कैसे बने?
कोई एक बता दे, मैं मान जाऊं। ये यादवा स्थली क्या है, क्यों हुई, कोई एक बता दे, मैं मान जाऊं। कृष्ण ने कितने विवाह किए, उनकी कितनी संतानें थी, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, समझना रतन मेरी बात को, शास्त्रों में उपलब्ध है, फिर भी कोई जानता नहीं। तो ये जो कमाल हो गया उनके व्यक्तित्व के साथ, ये जो गड़बड़ हो गई, तो इस किताब में कोई ऐसी चीज नहीं है कृष्ण की जो मैंने छिपाई है, पूरी की पूरी प्रकट है, और क्यों हर चीज में उपलब्ध है उनकी साइकोलॉजी के साथ। सो शास्त्रों में सब कुछ उपलब्ध है, और कहीं कुछ मिसिंग है, समझ लेना कि कुछ 2-3 साल का एरा में कुछ नहीं मिल रहा है बाय द वे, तो मैंने उनकी साइकोलॉजी को आधार बनाया कर, है ना, कि ये व्यक्ति है, उनकी ये साइकोलॉजी है, तो उस अनुसार उनके 2-3 साल ऐसे गुजरे होंगे करके साइकोलॉजिकल श्रृंखला में पिरोया है और पूरा जीवन लिखा है। मतलब आपने जितने भी अभी सवाल किए, ये बुक पढ़ने के बाद हमारे पास उसका जवाब होगा। हाँ, अभी कृष्ण ने राधा को छोड़ा सब जानते हैं, क्यों छोड़ा क्यों कोई छोड़ा नहीं नहीं जानता, पता। और डिस्कस भी नहीं करते हैं, जी, है ना, जी। इसमें सब कुछ उपलब्ध है। शास्त्रों को आधार बनाकर आपने कृष्ण की संपूर्ण जीवन को किस प्रकार लिखा है? ऐसा है कि 2 चीजें समझना, जब हम महान लोगों की बात करते हैं तो कृष्ण तो महानतम है, तो पहली बात सबको यह समझना चाहिए कि कृष्ण जो कहते हैं वही उनका व्यक्तित्व है। तो गीता में कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उसमें वो जीवन भर जिए हैं, तो ये कृष्ण का व्यक्तित्व है। यदि कोई साइकोलॉजी के शिखर पे बैठा हो तो मैं कहता हूं कि उसे कृष्ण का जीवन पढ़ने के लिए, समझने के लिए गीता पर्याप्त है, आदमी का बोला हुआ पर्याप्त है। कबीर क्या है, ये कबीर के दोहों से जाहिर है, जीवन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं महान लोगों की बात कर रहा हूं, हाँ, आम मनुष्य की नहीं, वो तो और भी महान है ना, ऐसे प्रेम से बुके देता है बाहर और भीतर बोलता है कब बर्बाद होगा, है ना, उनकी नहीं। मैं महान लोगों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं उसमें जीते हैं। तो गीता को मैंने आधार बनाया है और उनका व्यक्तित्व भी वही है और उसी से पूरा जीवन चलाया है। तो जीवन की कहानी भी चलती है और कृष्ण की साइकोलॉजी भी चलती है साथ साथ में, कि यह परिस्थिति हुई तो क्या करें, कृष्ण ने क्या किया, क्यों किया, बस उसके साथ साथ कहानी चलती है और चलती चली जाती है। मुझे लगता है हमारे जीवन चलने में ये किताब बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाला है। कृष्ण की साइकोलॉजी से आपका क्या तात्पर्य है? अभी ऐसा है कि साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी ही विश्व है, मनुष्य भी एक साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब मैं साइकोलॉजी कहता हूं तो उसमें क्यों आता है, 2 चीजों का फर्क समझना। एक चीज आप बाहर से देखते हैं, वो दृश्य है, उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन वो दृश्य के पीछे एक अदृश्य धक्का है, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। और यहां पर हर व्यक्ति की एक साइकोलॉजी है, वैसे ही कृष्ण की भी एक साइकोलॉजी है और कृष्ण की साइकोलॉजी सबसे महान है। सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जीवन के सरताज हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, मास्टर हैं, उनके मुकाबले में कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। और इस किताब में उनको पूर्ण अवतार किस कारण से कहा जाता है उसके भी सारे कारण मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी गहरी साइकोलॉजी है। और शायद तुमने तो मेरे इतने लेक्चर सुने हैं, मैं गहरी साइकोलॉजी कहता हूं क्योंकि ऊपरी बातों से मनुष्य की किसी बात का समाधान हो नहीं रहा, होने वाला भी नहीं है, है ना। तो साइकोलॉजी का अर्थ थोड़ा ऐसा समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि महाभारत के युद्ध के पूर्व
कृष्ण से दुर्योधन ने सवाल किया होता तो कृष्ण के जवाब सारे के सारे अलग हो जाते। यदि अर्जुन ने कृष्ण की जगह बुद्ध से सवाल किया होता तो पूरी गीता ही अलग हो जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति की अपनी एक साइकोलॉजी है और वही उसका बेस है, बस सब कुछ साइकोलॉजी है। मेरी एक किताब भी आ रही है बहुत जल्दी, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। तो कृष्ण की साइकोलॉजी से मेरा तात्पर्य यह है कि कृष्ण क्या है, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, बस। और इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। कृष्ण के सारे क्यों का जवाब इस किताब में, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है, जीरो एरर पर्सनालिटी, एकमात्र विश्व इतिहास की जिनके किसी कर्म में एरर नहीं है, लेकिन कर्म ऐसे हैं कि सब जने घबराते हैं क्योंकि उनको क्यों का जवाब नहीं मिलता है। क्योंकि आप साइकोलॉजी बहुत गहराई से समझाते हैं, इसलिए शायद बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे ऊपर। बहुत गहरी किताब है, हाँ जी। इतने सारे शास्त्रों से कृष्ण के जीवन पर रिसर्च करते वक्त क्या आपको कोई सावधानी बरतनी पड़ी? और पूरी एक तो क्या होता है कि शास्त्र बहुत हैं और हर एक को यह समझना चाहिए कि शास्त्र किसी भी महान हस्ती के बारे में दो टुकड़े में लिखे गए हैं, एक शुरुआती दौर में है ना, और दूसरे बाद में। तो जो पुराने शास्त्र हैं और जितने पुराने शास्त्र हैं, मैं हमेशा उन्हीं को बेस बनाता हूं जब भी किसी की बायोग्राफी लिखता हूं या उनके बारे में बोलता हूं। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग शास्त्रों में एक ही किस्से के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो जब कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो मैं जो बेस है उसको कृष्ण की साइकोलॉजी मानता हूं कि जो चीज उनकी साइकोलॉजी के अनुसार जा रही है वो किस्सा सही है। अल्टीमेटली सब कुछ साइकोलॉजी है ना। और जीवन की धारा भी साइकोलॉजी है और मेरा पूरा जोर भी साइकोलॉजी पे। सो मैंने दो चीज़ों की सावधानी रखी। एक तो पुराने शास्त्रों को बेस माना, नए शास्त्रों को नहीं माना, क्योंकि चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, जब वे थे या उनके जाने के तुरंत बाद जो शास्त्र लिखे गए वे बड़े नॉर्मल तरीके से लिखे गए। और सबके बारे में ऐसा हुआ कि बाद में जो शास्त्र आए उसमें उनको लगा कि इनको भगवान बना सकते हैं, इनकी मार्केटिंग की जा सकती है ना। तो फिर खूब चमत्कारों की कहानियां जोड़ते चले गए, तो उनको मैंने अवॉइड करा है। और वो कहानियां आज तक चालू है। आज की सीरियल में तो न कृष्ण का व्यक्तित्व तो मिलता है, न उनके जीवन का एक किस्सा मिलता है। एक भी किस्सा ऐसा नहीं है जो शास्त्रों में हो। और छूटे बनाते चले जाओ, जो मर्जी है बनाते चले जाओ, कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन इस किताब में मैंने जहां से जो किस्सा लिया है उस शास्त्र का पेज नंबर भी डाला है, नाम भी दिया है। तो पूरी रिसर्च बेस्ड कहानी है। अब थोड़ा समझना, मेरा जोर साइकोलॉजी पे है और शास्त्रों में क्या होता है कि 2-3 लाइन में लिख दिया जाता है। अब समझो किसी की साइकोलॉजी तकलीफ में फंसे लोगों को बचाने की है तो वो महत्वपूर्ण है, समझ लेना। अब उसने ट्रेन में किसी को बचाया या बस में किसी को बचाया, 2 को बचाया या 4 को बचाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक कहानी का किस्सा होता है, एक कहानी होती है और एक साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी बेस है, पुराने शास्त्रों को तवज्जो दी है और क्रोनोलॉजिकली पिरोया है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज। तो ये खुशी की बात है कि बहुत सारे शास्त्रों को ना पढ़ के अगर हम इस बुक को पढ़ें हाँ तो वो कवर हो सकता है। आपके अनुसार इस किताब को पढ़ने से वाचक को क्या फायदा हो सकता है? ऐसा है कि कृष्ण जो हैं वो संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं और इस किताब में
उनके पैदा होने से पूर्व जब उन्होंने अपने 7 भाई बहनों की मौत देखी, उस समय उनके मन पे क्या बीती, वहां से जो उनकी साइकोलॉजिकल सीक्वेंस शुरू करी है तो अंत तक की है। और कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो संपूर्ण हैं और अपने जीवन की कोई भी जंग वो कभी नहीं हारे और हमेशा जंग में रहे, चाहे परिवार हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे राधा के साथ हो, जंग में हमेशा रहते थे और हर जंग जीतते थे। तो ये जो किताब है, एक कारागृह में पैदा हुए बच्चे कान्हा के जय श्री कृष्ण और द्वारकाधीश बनने की दास्तान है। और हर कोई यही चाहता है और दुनिया का हर व्यक्ति कृष्ण से बेहतर माहौल में पैदा हो रहा है, बेहतर माहौल में पल रहा है और चारों ओर इतने संकट उसके जीवन में नहीं है जितने कृष्ण के जीवन में। तो कृष्ण वहां से कैसे जीत के निकलते हैं, बस ये इस किताब में बताया है। और ये आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो कृष्ण किस परिस्थिति में क्या निर्णय ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और उसका क्या परिणाम आ रहा है, और हर एक को समझना चाहिए उसकी समस्या क्या है। युगों से मनुष्य दुखी है, समस्या समाप्त नहीं हो रही है। सब कुछ उपलब्ध है, जिन्हें हम महान कहते हैं वो भी उपलब्ध है, पर्सनैलिटी भी, उनकी बातें भी, है ना, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी समस्या एक ही है कि ये जो सामने परिस्थिति उससे कैसे निपटूं। तो इस क्यों का जवाब कृष्ण देते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति से जीत के निकल जाते हैं और कृष्ण से ज्यादा परिस्थितियों को कोई समझता नहीं है। इसलिए यह किताब पढ़ते पढ़ते मनुष्य कई गुना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मेरी भाषा ऐसी है कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन में रस है। यदि कोई बदला नहीं, बात समाप्त हो गई। समझ लेना मेरी बात को। साइकोलॉजी में सत्य उसको कहते हैं कि आदमी बदल जाए। यदि नहीं बदला तो हम कहते हैं कि सत्य बेकार गया, असत्य हो गया। तीर चलाया, लगा तो काम का, नहीं लगा तो गया। तो मैं हमेशा तीर निशाने पर लगाता हूं। आदमी को बदलना चाहिए, थोड़ा इस बात को समझना। एक कबीर का दोहा है, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, क्योंकि साइकोलॉजी इतना विशाल सब्जेक्ट है। मैं 400 घंटे के करीब बोल चुका हूं और पहली बार कोई साइकोलॉजी इतनी ज्यादा बोल रहा है, महत्व दे रहा है, तो समझ में नहीं आता कि क्या बात है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग तरीके से कि माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोंदूंगी तो है। अब ये साइकोलॉजी है। अब बुद्धिमान आदमी कह सकता है माटी कैसे कहेगी कुमार से, साइकोलॉजी में माटी बोलती है। समझ लेना कैसे बोलती है कि कोई ये दोहा प्रेम से सुन ले और सोचे कि हाँ यार किसी गरीब को सताना नहीं है, नहीं तो वो भी कल अपने को सताएगा, तो माटी बोल गई। और दोहा सुन के जो निकल गया उसके लिए माटी नहीं बोली। तो इस किताब का महत्व यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। समझिए आप। अभी गीता सबने पढ़ी है और सबसे मैं पूछूं कि गीता का सबसे महान श्लोक कौन सा है, तो एक साथ सब कहेंगे कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अच्छा, कल क्या किया था? मंदिर गया था। परसों क्या किया था? सोमवार रखा था। क्यों? कुछ चाहिए था। अरे फल की कामना, ऐसी गीता सुन रहे हैं, समझ लेना। तो गीता तो बेकार चली गई। लेकिन किसी की फल की कामना छूट गई तो साइकोलॉजिकल सत्य हो गया। तो इस किताब में, और मैं जब भी बोलता हूं मेक श्योर करता हूं, है ना, माटी से बुलवाता भी हूं और कुंभार को पिटवाता भी हूं, है ना, कि तेरे को बदलना तो पड़ेगा। तो इस किताब के बाद विश्व के इतिहास में इससे महत्वपूर्ण किताब नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्ण के जीवन में 24 घंटे संकट है और उनसे सीखने जैसा है ना। तो इस किताब में आदमी पढ़ते ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि मैं तो इससे बहुत अच्छी परिस्थिति में हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं, बस ये आइडिया लगाना है। और कृष्ण के आइडिया से सब वाकिफ हैं, है ना। दिक्कत क्या है कि महाभारत और कृष्ण का बचपन, दो ही जीवन उपलब्ध हैं, मैंने बताया ना। लेकिन इस किताब से ये फायदा है कि पूरा जीवन समझ में आता है कि
जितने भी जीवन में संकट हो उन पे विजय पाई जा सकती है, जय श्री कृष्ण बना जा सकता है। वाकई में मैंने इसके बस शुरू के 10 पन्ने पढ़े हैं और उसका बहुत ज़्यादा असर है। मैं मार्कर के बिना आपका बुक नहीं पढ़ पाती। मेरा बुक हमेशा रंगा हुआ होता है, क्योंकि एक भी पंक्ति ऐसा नहीं लगता है कि वो लाइफ में उतारी नहीं जा सकती है। सो थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल मैं करने जा रही हूँ, आप कृष्ण को किस दृष्टि से देखते हैं? कृष्ण एक संपूर्ण व्यक्ति हैं और जितने भी ज्ञानी हैं बिना अपवाद के उनको एकमात्र पूर्ण अवतार कहते हैं, और एकमात्र पूर्ण अवतार हैं। मैंने बताया 0 एरर। कृष्ण से एरर का कुछ भी लेना देना नहीं है, परफेक्शनिस्ट हैं। एक बार जब उन्होंने अचीव कर लिया परफेक्शन, फिर वो हाइट छुई है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं है। हम तो अभी छोटी साइकोलॉजी नहीं समझते, तो पूर्ण अवतार किसको कहते हैं वो इस किताब में समझाया गया है। कृष्ण के जीवन में सब कुछ है, प्रेम भी है, रास भी है, 56 भोग भी है, समझना इस बात को। युद्ध भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, छल भी है, कपट भी है। कृष्ण को किसी बात से इतराज नहीं है। कृष्ण एक अचीवर है, थोड़ा समझना इस बात को। सबसे गलत है ये कहना किसी भी आदमी के बारे में कि ये डेस्टाइन है। ये कहना ही गलत हो जाता है कि कृष्ण के भाग्य में लिखा था भगवान बनना। अभी भाग्य में भगवान बनना लिखा था या भगवान पैदा हुए थे, समझें, तो फिर उनसे सीखने जैसा तो कुछ बचा ही नहीं। और जितना कृष्ण से सीखा जा सकता है डे टू डे लाइफ में, उतना किसी से नहीं सीखा जा सकता। एक ग्वाला जिसको यशोदा कहानी सुनाती थी राजकुमारी की, और बच्चा सोचता था वाह क्या ठाठ है राजकुमारी के, उस लड़के ने बड़े होते होते 8 शादियां की, उसमें से 7 राजकुमारियां थी। ये अचीवमेंट है, ये भाग्य में नहीं था, समझ लेना, ये अचीवमेंट है। वो द्वारकाधीश बना, ये अचीवमेंट है। अभी ये जो डेस्टिनी शब्द है ना, ये किसी भी पुराने शास्त्रों में नहीं है। ये जो भगवान शब्द है, कृष्ण की ही बात करूं तो मैं, जो बीसी पहले के शास्त्र हैं जैसे शतपथ ब्राह्मण, तो कृष्ण को योद्धा बताया है, राजनेता बताया है। हरिवंश पुराण जो 300 बीसी का है, जो इंडिका 200 बीसी की है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। ये सब जगह पीछे से आता है, समझ लेना। सब जगह पीछे से दुकान चलाने को आता है, जीवन गायब हो जाता है, साइकोलॉजी समझते नहीं है, फायदा हो नहीं रहा है। और मैं चाहता हूं कि कृष्ण जैसे व्यक्तित्व का फायदा उठाया जाए, क्योंकि मनुष्य के पास यदि कुछ सबसे मूल्यवान है तो एक कृष्ण का जीवन है और दूसरी उनकी कई भगवत गीता है। और मैं चाहता हूं कि संपूर्ण मनुष्य जाति इसका फायदा उठा ले, हंसते खेलते जीवन जिए, चांद तारों पे राज करे। पृथ्वी पे क्यों स्ट्रगल कर रहा है जब इतना महान आदमी हमें उपलब्ध है? तो समझ गए। सो डेस्टाइन कहना गलत हो जाता है, अचीवर है। और फिर कृष्ण का पूरा जोर कर्म पे है, और ऐसे कर्मवीर को आप क्रेडिट छीन लो अचीवमेंट की, ये तो तौहीन है। एडिसन वो गरीब घर में पैदा हुआ, अनपढ़ था, देखा कितना महान वैज्ञानिक बन गया, भाग्य में था। हर कोई एक्सक्यूज देता है, भाग्य एक्सक्यूज है, समझ लेना। आज पूरा हिंदू धर्म जो पौराणिक है वो 2 ही चीजों को ईश्वर मानता है, और 2 ही ईश्वर है, एक ब्रह्म की संयुक्ता या मेरे आत्मा की एकांतता, निराकार शून्य। या तो सब कुछ ईश्वर है या कुछ भी ईश्वर नहीं है। कृष्ण भी गीता में अपने 2 ही स्वरूप की चर्चा करते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि जो कुछ भी तुझे दिखता है सब में हूं, और मनुष्यों के शरीर में आत्मा रूप से हूं। और अर्जुन कंफ्यूज होता है। अर्जुन गीता में राजी क्यों नहीं होता है कि वो ईश्वर को कृष्ण के शरीर में खोजता है कि ये कृष्ण और ईश्वर नहीं हो सकता। कृष्ण कह रहे मैं नहीं हूं, मेरे ये 2 ही स्वरूप है, लेकिन अर्जुन को वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया।
तो ईश्वर के दो ही स्वरूप, एक निराकार है या सब में वो है, बीच में कहीं नहीं है, और पूरी दुनिया बीच में जी रही है और फंस रही है। सो कृष्ण एक महान व्यक्ति है, परफेक्शनिस्ट है, पूर्ण है, उनसे जितना फायदा उठा ले उसकी मैंने कोशिश करी है। और निश्चित ही ये किताब कृष्ण को और उनके व्यक्तित्व को पूरे विश्व में फैलाने में सहायता करेगी। जो जितना फायदा उठाएगा वो ठीक है, विश्व तो उठा ही लेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आप सबके मन में जितने सवाल होंगे उसमें से आधे से ज़्यादा का जवाब आपको मिल गया होगा। एंड मैं पर्सनली आपको थैंक यू कहना चाहूँगी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे रतन, हालांकि मैं ये जो रतन के बारे में भी दो शब्द कहूँगा। ये इतने लेक्चर सुनने आती है, ये पहली बार है सवालों की लिस्ट लेके बैठी है। आज तक कभी मुझे नहीं लगता एक भी सवाल पूछा है ना, नहीं। शूटिंग छोड़ के आ जाएंगी लेकिन सवाल नहीं पूछेगी, पी जाएगी सीधे। और सबसे बड़ी बात है जो सीखने जैसा है, एक रतन को सब जानते हैं ना कि एक्ट्रेस है, टैलेंटेड है, नेम है, फेम है, लेकिन वो ये जानती है कि वो रतन ये नहीं है, इसके अंदर एक और अनमोल रतन है, और मैंने हमेशा उसकी चिंता करते देखा है। और मैं सबसे ये कहता हूँ, हम जो दीप दिख रहा है ना वो महत्वपूर्ण नहीं है, असली दीप एक भीतर छिपा है, बस वो महत्वपूर्ण है। जो उसकी चिंता करेगा वो ऐसे हंसते रहेगा। सो थैंक यू दीप जी, मुझे मुझसे मिलवाने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं रतन, मैं तेरे को ये देना ही चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार मतलब मैंने कभी इसको सवाल नहीं पूछना बहुत बड़ी बात होती है। वरना मैं जिस तरीके से बोलता हूँ आदमी सवालों की जड़ी लगा देता है, जो भी सुनने आता है वो, और दूसरे दिन घर से तैयार करके ले आता। और अच्छा ये देना। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, रतन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे और हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। बुक में तेरे को यहाँ रखे। थैंक यू सो मच रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे बीच आए। थैंक यू सो मच। अब मैं रतन, मैं इधर बैठ जाता हूँ, चलेगा ना? यस सर। थोड़ा फेस चेंज करें ना। द प्रॉपर सीट, द डेडिकेटेड सीट फॉर यू। वैसे आप यहाँ सामने, और मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी अगर इजाज़त हो तो। इरशाद? इरशाद? ज़रा गौर फरमाइए। निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिर के संभलते गए। निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिर के संभलते गए। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, लेकिन चिराग इन आंधियों में भी जलते रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर दीप त्रिवेदी as we unveil his book I Am Krishna, the Master of Mind and Life. Ladies and gentlemen, now we open the floor for the media. I request my dear friends. कोई भी पूछ ले, सब एक ही बात है, क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, आप क्वेश्चंस एक एक करके पूछे, हाथ ऊपर कर, हम माइक आपके तरफ ले आएंगे। जी, किससे? ओके। हाँ, नहीं दे रहा है माइक ले लो। कोई दूसरा पूछ लो तब तक। हेलो। हाँ, आई गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरा एक सवाल है, कृष्णा जी ही क्यों, मतलब हिंदुइज्म में इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बाकी रिलीजन में गिने चुने होते हैं, पर हिंदुइज्म में बहुत सारे हैं, आपने कृष्णा जी को ही क्यों चुना अपनी किताब लिखने के लिए? मैंने कहा ना कि एकमात्र परफेक्शनिस्ट है। अभी शास्त्रों की बातें देखो, मैं हर एक को एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ, शास्त्रों में क्या लिखा है ना, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दो चीज समझ लेना, मनुष्य चेतना का विकास होता है और हो रहा है और निरंतर होगा। तो ये 10,000 साल पहले, 15,000 साल पहले, 5,000 साल पहले किसने क्या लिखा, और कोई एक ऐसा शास्त्र ला दो
जिसको आप कहे कि हाँ ये मुझे पूरा का पूरा कबूल है, पहली बात। दूसरी बात, शास्त्र सिर्फ हिंदू धर्म में तो नहीं है ना, अभी जैन धर्मों के भी अपने शास्त्र हैं। अभी उसके हरिवंश पुराण के 56 से 66वें श्लोक में लिखा है कि कृष्ण से बड़ा पापी कोई नहीं है, और 5000 साल से नरक में सड़ रहे हैं और अभी सड़ते रहेंगे, तो वो भी शास्त्र है, फिर उस पर भी यकीन करना चाहिए, है ना। बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, यकीन कर लो। तो शास्त्रों की बात हम न करें। 3 ही ग्रंथ हैं इस दुनिया में जिसमें सत्य कहा गया है, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता और लाओ त्सु, और इन तीनों पे मैंने हाईएस्ट लेक्चर दिया है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चौथी चीजों की मैं ज्यादा बात नहीं करता। चीज वो जो परिवर्तन लाए, अभी ब्रह्मास्त्र था, अरे ब्रह्मास्त्र तो ये निकल गया कि अमेरिका बटन दबाता है और सीरिया की बिल्डिंग उड़ा देता है। अभी क्या करेगा ब्रह्मास्त्र। तो कृष्ण परफेक्शनिस्ट है, परफेक्टनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, नंबर 1 है, और वो है तो है, और वो इस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन उनकी साइकोलॉजी, उनका व्यक्तित्व, इसलिए मैं शास्त्रों की चर्चा नहीं करता कि कोई भी शास्त्र ले आएंगे बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। सो हम उन ग्रंथों की चर्चा करें जिसमें हमें ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और कोई? थैंक यू सर। हेलो हेलो, हाँ हेलो, यहाँ जोर से, यहाँ पे। हाँ, कहाँ पर? दिखता ही नहीं है। आपके भाई ने, चल जहां से वहां से बोल दो, आवाज आ जाएगी। साइकोलॉजी आप कई बार कह रहे हैं साइकोलॉजी, तो एग्जैक्टली जो है सरल भाषा में इसका तात्पर्य क्या है वो जरा बताइए। ऐसा है, थोड़ा समझना, और मैं अभी कोई हेवी बात ना करके हल्के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, और कुछ किस्से कहानियों से समझाने की कोशिश करता हूं, आसानी हो जाएगी। अभी मनुष्य जो कुछ भी है वो साइकोलॉजी है, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो उससे उसकी साइकोलॉजी करवा लेती है ना। कृष्ण ने इस बात को गीता में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है। अब मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी जो गांव में दुकान चलाता था, बड़ा ही सज्जन था, और सामान खरीदने उसको शहर जाना पड़ता था हर महीने। वो गांव से निकला पैसा लेके, शहर पहुंचा, लेकिन अब की कुछ ऐसा हो गया कि बेचारा ठगा गया, उसके सारे पैसे लूट लिए गए। अब वो तो परेशान हो गया, अनजान शहर, जेब में पैसा नहीं, चलो सामान ना लो, गांव तो वापस पहुंचना पड़ेगा, बस का किराया नहीं, करे क्या। अब क्या करेगा ऐसा आदमी? सीधी बात है, लोगों से गुहार लगाएगा, बेचारा रो के जो अच्छा लगे उसको, कि अपनी दास्तान सुनाए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। कौन सुनता है? 1-2 रोज निकल गए, भूखा प्यासा हो गया, तबियत बिगड़ने लग गई, लेकिन कोई सुने ही ना। अब ऐसा हुआ योगानुयोग कि वो रात जन्माष्टमी की रात थी, और बेचारा लथड़ाते लथड़ाते जा रहा था कि कहीं से सहायता मिल जाए, खाना मिल जाए इमीडिएट, और बस की टिकट के पैसे मिल जाए, चले जाऊं। ज्यादा कुछ चाहता भी नहीं था, गलत भी नहीं था। तो उसने देखा कि आहा, मंदिर के बाहर कितनी भीड़ है, यहां जरूर मिल जाएगा, मंदिर में सज्जन लोग ही जाते हैं। तो उसने वहां गुहार लगाना शुरू करी। तो जिसे देखो एक ही बात बोले, हम तो ऐसी कहानियां रोज सुनते हैं और रोज सुनाते हैं। किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्या करे, उससे चला भी ना जाए। फिर भी किसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहां एक रेस्टोरेंट था, वहां से 3-4 शराब पी के लोग बाग निकले। अब इसके पास तो लास्ट स्कोप था, उसने उनको अपनी दास्तान सुनाई कि मैं ऐसा ऐसा फंस गया और खाना चाहता हूं। सुनते ही एक ने कंधे पर हाथ रखा और बोले चल, अंदर ले गए, फर्स्ट क्लास खाना वाना खिलाया। और बाकी लोगों को बोला देखो कितने संकट में है,
फट 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 500,000 रुपए इकट्ठे हो गए, उसको दे दिए। उसमें जान में जान आ गई। वो बाहर आया और बाहर आते ही बोले, वाह रे कृष्ण, तू तो आज भी छलिया है, रेता कहां है और पता कहां का देता है। तो ये साइकोलॉजी है। आप कहां बैठे हैं और क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। कृष्ण की साइकोलॉजी में कौन है, उनसे ज्यादा निकट कौन है, उसका उद्धार होगा। आप कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा समझना। अभी क्राइस्ट है, इतने प्रेमी, इतने बोले, इतना सच्चा ज्ञान बांट रहे थे कि कहां चक्कर में पड़े हो शास्त्रों के। मेरी बात सुनो, मैं खबर लाया हूं, मैं उस जहां की खबर लाया हूं। क्या गुनाह कर लिया था उन्होंने, किसके वहां चोरी करी थी, किसके वहां डाका डाला था, सूली पे लटकाया, कीलें ठोकी गई, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, और वो आदमी क्या कह रहा है, इन्हें माफ करना प्रभु। और क्या कह रहा है, क्राइस्ट कह रहे हैं तेरी मर्जी पूरी हो जा। हैं, इस साइकोलॉजी के निकट आना है। और यहां तो कुछ भी बात में दम नहीं है, कोई घुर के देख लेता है, भगवान इसको उठवा ले। फिर आप चर्च जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी क्राइस्ट के निकट जा रही है कि नहीं जा रही है, आपकी साइकोलॉजी कृष्ण के निकट जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसको मैं साइकोलॉजी कहता हूं कि कालिया के फन पे फंसे पड़े हैं कृष्ण, नाक काटने को है, मौत सर पे खड़ी है, तो सोच रहे मरना ही है तो हंसते हुए मरे, निकालते बांसुरी और बजाना शुरू कर देते हैं। इसको मैं साइकोलॉजी कहता हूं। यहां तो एक फोन आया था 6 रोज, एक फोन आया नहीं, 6 रोज घर से निकलना बंद हो गए। हम कृष्ण की साइकोलॉजी के निकट नहीं जा रहे, क्राइस्ट की साइकोलॉजी के निकट नहीं जा रहे हैं। मैं मोहम्मद का किस्सा सुनाऊं एक, कि एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ वो घोड़े पे जा रहे थे, पीछे दुश्मन लग गए और वो 50 घोड़ों पे सवार थे, हथियारों से लैस थे। अब और तो कुछ किया नहीं जा सकता था सिवाय कि घोड़े जोर से भगाओ। अब थोड़ी दूर बाद एक गुफा का रास्ता दिखा, तो सबने सोचा इसमें घुस जाएं, तो घुस गए। अब घुस तो गए, बाकी सब एकदम घबराए हुए और मोहम्मद एकदम रिलैक्स बैठे हुए। तो शिष्य भी चमक गए, अरे बोले वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा। अरे बोले, और आप तो कुछ सोच ही नहीं रहे, मुस्कुरा रहे। तो मोहम्मद बोले, भाई वो आएंगे नहीं आएंगे ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है। अरे मेरा काम खत्म हो गया होगा तो वो ढूंढते हुए आ जाएंगे, और मेरा काम खत्म हो गया होगा तो उसके लिए खुदा को उनके इंतजार करने की जरूरत थोड़ी है। वो ऐसे ही बुलवा सकता है ना, रात को 12 बजे तक। और मेरा काम खत्म नहीं हुआ होगा तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, और ढूंढ भी लेंगे तो मार नहीं पाएंगे, तो मैं चिंता क्यों पालूं। समझना, ये मोहम्मद की साइकोलॉजी है। अब बाकी कुछ करने से किसके जीवन में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि महान लोगों की साइकोलॉजी के निकट जाने से जीवन का उद्धार हो जाता है। सो उम्मीद आप समझ गए होंगे सब जने मैं जो साइकोलॉजी कह रहा हूं वो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। क्या बात। ये एक तरह से श्री कृष्ण की जीवनी है। इसमें यथार्थ कितना है और प्रतीक कितना है, सिंबलिज्म कितना है, रियलिज्म कितना है। इसमें जहाँ तक दृश्यों का सवाल है, हम जब दृश्यों की बात करते हैं तो दृश्यों में जो किस्से हैं वो तो शास्त्रों से ही लिए गए हैं, लेकिन वो जो किस्से हैं वो एलोबरेटेड नहीं होते, है ना। सो एक तो पहले उनका कहीं कहीं एलोबरेशन है ढंग से, लेकिन मेन जो कृष्ण की साइकोलॉजी है वो पूरी की पूरी एज इट इज और परफेक्ट है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक कृष्ण की बात है तो मेरी नस नस में है वो, मैं फ़ोन करूँ हाँ हाँ ऐसा बराबर है,
कहीं दिक्कत नहीं है कृष्ण से या किसी भी चीज़ से, तो साइकोलॉजी मेरी नस नस में है। तो कृष्ण का जीवन कैसे बना कि भाई इस मनोदशा में पैदा हुए, और शास्त्र यह उनका जीवन बता रहा है, और उन्होंने यहाँ सीखा, और यहाँ वो परफेक्ट हो गए, और उन्होंने यह करा, यह सोचकर। तो दोनों चीज़ें पैरेलल जा रही है। तो साइकोलॉजी तो पूरी की पूरी वैसी जाएगी, जीवन भी करीब करीब शास्त्रों के हिसाब से ही जा रहा है जो वर्णित है। जो किस्से हैं वो निश्चित ही बनाने पड़ते हैं, और वो बनाए हैं कि जैसे मेरे पास 2 ही लाइन का क्लू है कोई शास्त्र में, तो वो 2 लाइन में चीज़ समाप्त नहीं हो रही है, तो फिर वहाँ पर डेवलपमेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकली पूरा। और दूसरा क्या है हरीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जोर क्यों पर है, कि कृष्ण ने यह क्यों किया, और वो जो क्यों है ना, वो 2 चीज पे निर्भर है, एक तो सामने वालों की साइकोलॉजी पे और एक परिस्थिति पे। तो परिस्थितियों का भी पूरा साइकोलॉजिकल वर्णन बहुत डिटेल में है, और सामने जिससे वो डील कर रहे हैं उनका भी साइकोलॉजिकल वर्णन पूरे डिटेल में है, और कृष्ण का भी साइकोलॉजिकल वर्णन पूरे डिटेल में है। इससे एग्जैक्ट कृष्ण का कैरेक्टर समझ में आ जाता है, और सीधा वो गीता पे जाके बैठ जाता है। ऐसा समझें कि हर मनुष्य की साइकोलॉजी चेंज होती है, बॉन्ड नहीं होती कभी भी, और वो होती रहती है। अभी जैसे बुद्ध ने एक मृत्यु देखी, एक बीमार आदमी देखा, उनको लगा ये जीवन सही नहीं है, इससे बड़ा सत्य होना चाहिए, तो बुद्ध के लिए वो मृत्यु देखना सार्थक हो गया, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो गई। ऐसे ही कृष्ण की भी बार बार साइकोलॉजी चेंज हुई है, और जाके फिर एक परफेक्शन में पहुंची है, जैसे बुद्ध की पहुंची है, जैसे क्राइस्ट की पहुंची है, किसी की भी पहुंची है। तो उसी अनुसार मैंने पूरा जीवन बढ़ाया है कि कब परफेक्ट हुआ वो भी उसमें लिखा है, फिर कब परफेक्शन से ऊपर गया उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया वो भी लिखा हुआ है। सो इसी हिसाब से ये पूरा है। साइकोलॉजी में उनका मानस कि क्यों और क्या परिस्थिति है एग्जैक्टली। भाई हम तो कहते इसका वध कर दिया, ये छल कर दिया, चलो ये छल किया, ये वचन तोड़ा, ये कपट किया, है ना, सब किया, लेकिन वो क्यों किया तो सामने परिस्थिति देख लो। और देखना ये है कि कृष्ण ने तो कर लिया, हम क्या करते हैं, बस यही हमारा उनका फर्क है। गीता की बात चली है तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने शुरुआत में कहा कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। दूसरे की तरफ मत देखो, जो धर्म तुमने अपनाया है वही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु क्यों ना है। लेकिन 18वें अध्याय में जाके अंत में वो कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो। तो इन दोनों में क्या विरोधाभास नहीं? विरोधाभास नहीं। जब हम कहते हैं ना साइकोलॉजी में, तो कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं। हरे जी, अभी गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू रण नहीं छोड़ सकता, और जब जरासंध अपनी सेना लेके आ गया कृष्ण को सोचते हुए हाथ तो छोड़ूंगा नहीं दोनों भाइयों को, तो उन्होंने पहला काम करा रण छोड़ के भाग गए, है ना। तो वहां पर रण छोड़ के भागना सत्य है। साइकोलॉजी का अर्थ क्या है कि साइकोलॉजी इस मूवमेंट की बात है, हम खींच लेते हैं पहली बात को। अब जब कृष्ण स्वधर्म कह रहे हैं तो स्वधर्म यानी मेरा मन। अब मेरा मन जो है उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। पूरी गीता का सार क्या है कि जो तेरा मन है वो तेरा ईश्वर है। तेरे मन में आज भी कौरवों से द्वेष है, तेरे मन में आज भी राज्य की इच्छा है। अब तू डर के मारे उससे भाग रहा है, लेकिन दोनों मौजूद है। ना मौजूद होते तो गीता पूरी अलग हो जाती। वो मौजूद है, अर्जुन ने फर्क समझना। तो कह रहे हैं कि स्वधर्म में मरना बेहतर है। तेरे मन में मौजूद है इसलिए तेरे लिए मरना बेहतर है। मन में ये नहीं होता तो कोई झंझट ही नहीं, लेकिन मन में है और भागेगा तो पीछे से डबल फंसता है। बस इतनी सी बात है। और पीछे जो कह रहे हैं वो जो अर्जुन बार बार वेदों की, शास्त्रों की, और कृष्ण कह रहे छोड़ना मेरे भाई, इन सबको तो मैं कब का छोड़ के आगे निकल चुका हूं, है ना। तो हम कृष्ण को दरअसल ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे हम प्रतीक मानते हैं कि भाई प्रकृति की त्रिगुणी माया में 3 शक्तियां हैं।
एक ब्रह्मा है जो पैदा करता है, एक विष्णु यानी कि बीच में टिकने वाला गुण मनुष्य का, और एक मारने वाला गुण। तो ब्रह्मा और महेश को तो अलग कर देते हैं कि भाई ये दोनों बात तो एक एक सेकंड की है, बीच में बचा विष्णु। तो इस वजह से क्या होता है कि किसी भी अवतार को हम कहते हैं विष्णु का अवतार, कि भाई बीच में है, उसका भगवान उसके बीच में है, उसके जीवन में है। सो कृष्ण तीनों कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तीनों को पार कर चुका हूं, और इसलिए वो पूर्ण अवतार है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रलय उदय सब मेरे हाथ में। अर्जुन तो कहाँ धर्मों की बात कर रहा है, सब त्याग दे और जो मैं कह रहा हूं सुन ले, कि जो तेरा स्वधर्म है, तेरे मन में युद्ध नहीं होता, कृष्ण नहीं कहते। अगर कृष्ण की जगह सवाल महावीर ने पूछा होता तो कृष्ण कहते इतना इंतजार क्यों कर? सवाल सामने वाले की साइकोलॉजी का। तो उम्मीद आप समझ गए कौन पूछ रहा है, हम भी डे टू डे करते हैं, कौन पूछ रहा है उस पर डिपेंड है ना। ठीक जवाब तो है नहीं साइकोलॉजी में। थैंक यू। मैं एक किस्सा सुनाता हूं साइकोलॉजी का आखिरी में, क्योंकि सवालों का और जवाबों का अंत नहीं है, लेकिन हम तो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण कहते हैं भूखे पेट भजन में गोपाला, है ना। सो बेहतर है कि टाइम से खाना पीना शुरू करें, है ना, नहीं तो कृष्ण कहेंगे यार तुमने मेरी सभा में मेरी ट्यून कर दी भाई। मैंने पहले बोला भजन से भोजन पहले। एक आखिरी किस्सा सुनाता हूं साइकोलॉजी समझाने के लिए, कि परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वो चीज सत्य है, साइकोलॉजी का सिद्धांत है, और परिवर्तन नहीं हुआ है तो चीज असत्य है। बुद्ध के लिए एक मृत्यु सत्य हो गई, हम हजारों सालों से मृत्यु देखते आ रहे हैं, रोज मृत्यु देखते हैं, सत्य नहीं हो रही। तो आप कहेंगे कि मर गया, मैं कह रहा हूं वो तो मर गया, लेकिन तुम्हारे में कुछ नहीं आया और बुद्ध में आ गया। तो बुद्ध के लिए वो मृत्यु सत्य हो गई, हमारे लिए असत्य हो गई। तो साइकोलॉजी शरीर का सत्य नहीं देखती, वो परिवर्तन में विश्वास करती कि तुम 2 कदम भगवान की तरफ आगे बढ़े या नहीं बढ़े। एक किस्सा सुनाता हूं, मुल्ला नसीरुद्दीन, महान कैरेक्टर है, सभी जने जानते हैं। अब ये जोक है ना। सो मुल्ला नसीरुद्दीन को पीने की आदत थी, शरीफ आदमी था, 2-3 पैक पीता था बेचारा, और घर आता था, घर पे आके पत्नी के साथ प्यार से खाना खाता था, बातें करता था, सो जाता था। फिर दूसरे दिन सुबह टाइम से उठता था, सज्जन व्यक्ति था, दुकान पहुंच जाता था, दिन भर दुकान पे काम करता था, शाम को आते वक्त रास्ते में एक बियर बार पड़ता था, वहां पर नियम था 2-3 पैक लगाया, घर आ जाता था। अब वैसे सिस्टम उसकी पूरी सेट थी, लेकिन पत्नी परेशान थी। एक तो मुसलमानों के शराब और ऊपर से शराब, और घर आने में 2 घंटे लेट। परेशानी के 3 कारण थे। पत्नी ने काफी समझाया, लेकिन मुल्ला को कुछ भी चीज लॉजिकल नहीं लगी। यार सब कुछ सीधा चल रहा है, क्या तकलीफ। अब ऐसा हुआ कि अचानक गांव में कोई बड़ा फकीर आया, तो पत्नी उसके पास गई सुनने को, तो देखा फकीर बड़ा प्रभावी है, और प्रभाव तो अपनी जगह। उसने शराब के खिलाफ 5-7 मिनट का धमाकेदार लेक्चर दिया, पत्नी तो इंप्रेस हो गई, ये मेरा काम कर देगा। तो पत्नी ने मुल्ला को पकड़ा और बोले चलो अपने को फकीर के पास चलना है। मुल्ला बोले मेरे को क्यों चलना है, मेरे को कोई फकीर वकीर में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यूं फकीर हुआ पड़ा हूं। बोले नहीं चलना पड़ेगा आपको, मेरी कसम है। अब कोई भी हो, कृष्ण एक्सेप्शन है, ताकि पत्नी आते बोलती बंद हो जाती। और कृष्ण से सबसे पहले ये सीखना है कि वो ऐसी क्या चीज है बोलती बंद हो जाए। कृष्ण से पहली चीज ये सीखना है कि ऐसी क्या बात है यार तो कृष्ण की बोलती बंद हो जाए। तो मुल्ला की तो बोलती बंद हो गई। बोले चलो मिल आते हैं। मुल्ला ने सोचा क्या दिक्कत है, तो निकला घर से पत्नी के साथ। कोई जाने में रास्ता था नहीं, बस फॉर्मेलिटी थी, निभानी थी। वहां पहुंचे तो पत्नी ने बता दिया इशारे से फकीर को, तो फकीर ने मिलने बुलवा लिया दोनों को। फकीर ने दोनों को मिलने बुलवा लिया।
अब फकीर ने मुल्ला को ना शानदार तरीके से लपेटा और यहाँ वहाँ की बात करी और फिर शराब पे आया और फिर उसका उम्र गिनाया और फिर उसके पाप और ये, अरे मुल्ला को भी अच्छा लगा। पूरी बात खत्म करके फकीर ने पूछा, समझ में आई बात? मुल्ला बोले ऐसा लग रहा है समझ में आ रही बात। पत्नी को तो बस समझ में आ गई ना, छोड़ दो, कसम खा लो कि आज के बाद मर जाऊंगा लेकिन दारू नहीं छोड़ूंगा। मुल्ला बोले नहीं कसम बताओ। अरे फकीर बोले क्या बात करते हो, आदमी हो कि क्या हो? जब बात समझ में आ रही है ऐसा लग रहा है तो कसम खा लो। मुल्ला को लगा हाँ कसम खा लो, बात सही है, क्या है? इस जन्म में भी मरना, अगले जन्म में भी मरना, ऊपर भी छोड़ दो, कसम खा ली। ठीक है भाई। पत्नी तो कुछ घर पे आ गई, ये बेचारा शरीफ आदमी दुकान पे बैठ गया। अब दिन भर की दुकान निपटा दी इसने, भूल भी गया कसम खाई थी। शाम हुई, शाम को रूटीन अपने घर के लिए चला चुपचाप, तब तक भी ठीक था। वो अचानक 20 फीट दूर बियर बार, तो इसको याद आया अरे हाँ ये क्या, और अंदर से तो आ रही है तलब और सामने बियर बार और सुबह कसम खाई। मुल्ला तो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। अब करे क्या? फिर थोड़ा टाइट हुआ और बोले नहीं नहीं मुल्ला, सुबह कसम खाइए, कुछ भी हो जाए निकल जाओ, नहीं पीना, ठीक है? जैसे जैसे दुकान निकट आए, बेचारे के कदम रखलाए, मन अंदर से धक्के मारे, लेकिन नहीं, अपने को समझा नहीं मुल्ला नहीं, ठीक है? किसी तरह से हिम्मत करके दुकान के सामने से निकल गया और फिर 5-6 कदम बड़े शान से चला, फिर रुका, फिर अपने पीठ थपक गए। बोले वाह रे मुल्ला, क्या बात है, कसम खाई तो निभाई, दुकान के सामने से निकल गया लेकिन पी नहीं, चलिए स्टीम पिला दो। फिर आके बैठ गया। तो साइकोलॉजी चेंज नहीं होगी तो ये कसमें, ये रस्में कुछ काम नहीं आएगी। एक आखिरी बात बता के फिर भी कोई सवाल होगा तो ले लूंगा, लेकिन सवालों का अंत नहीं होने वाला और भूखे पेट भजन करने का मतलब नहीं है कि तुर्जीएव एक महान गुरु थे। समझना इस बात को, साइकोलॉजी को समझना। हम बदनाम यहां वहां करते हैं, भटक गए, भटका दिए गए। तो कोई भी शिष्य उनके यहाँ जाता था ना, तो सबसे पहले कहते थे तो कुछ मत कर। सबसे पहले क्या कहते थे कि तू कुछ भी मत कर, ये सामने शराब पड़ी है, पिए जा और खूब पी, और सब जने मिलके पिए बस। अब वो क्यों ऐसा करते थे समझना, मैं बता रहा हूं। आदमी कहता है शराब खराब है, अभी एक ही ब्रांड है शराब की समझो, और 20 जनों को साथ में बैठ के पिला दो। 20 जने शराब होगी वही। अच्छा ये 20 जने कौन है? 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव वाले, 1 लीवर वाले। तो शरीर में भी कुछ नहीं है, शराब में भी कुछ नहीं है। पीने के बाद 20 के बिहेवियर अलग अलग हो जाते हैं ना। एक बोलता है क्या चाहिए, दूसरा बोलता है क्या है तेरे पास। अब ये उसकी साइकोलॉजी है, समझते ना। ना शराब में पूछे, तुर्जीएव ये कहते थे कि ना शराब में पूछे ना तेरे शरीर में पूछे, जो कुछ भी है वो तेरी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में वो बाहर निकल रहा है। अब आप लूटने की साइकोलॉजी से मंदिर में बैठे हो या बांटने की साइकोलॉजी से मदिनालय में बैठे हो, सवाल ये है साइकोलॉजी का। तो कुदरत में जो महान बन रहे हैं, कुदरत जिन पे मेहरबान है वो उन्हीं पे मेहरबान है। जिनकी साइकोलॉजी पवित्र है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। और ये प्रश्न से बढ़िया कोई नहीं सिखाता। सो थैंक यू वेरी मच। शायद इजाजत हो तो।
जोर से। इतनी सक्सेसफुल किताबों के बाद अब आपने एक नई किताब लाई है आई एम कृष्णा। हम जानना चाहेंगे श्री कृष्ण से आपका कितना मैंने भगवत गीता मेरा फेवरेट ग्रंथ है, उसको पढ़ के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन, और इसीलिए मैंने कृष्ण का जीवन पढ़ा। और जब पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इससे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इससे महत्वपूर्ण जीवन नहीं हो सकता जिससे सीखा जा सकता है। और इसीलिए मैंने कृष्ण के जीवन पे और उनकी साइकोलॉजी पे किताब लिखी, ताकि मनुष्य को सीखने को मिले और उसका जीवन सुधरे। आजकल की देखेंगे तो जनरेशन है वो अलग अलग किताबों का पर उनका ज़्यादातर रुझान है। जैसे आप देख लेंगे अलग अलग जो फिक्शनल नॉन फिक्शनल जो होते हैं, नॉन फिक्शनल में कम, फिक्शनल भी ज़्यादा होते हैं। तो इस किताब से कितना उनका लगाव रह सकता है और कितना उनका मार्गदर्शन हो सकता है किताब में? ऐसा है कि अभी ऐसा नहीं है जैसा पहले सोचते थे, क्योंकि मैं एकदम सीधा बोलता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, साइकोलॉजी बोलता हूँ। फिर भी जो किताबों की सक्सेस है, लोग बाग सुनते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। तो अब पुराने वाली बात नहीं है, काफ़ी लोग सुलझे हुए हैं और आराम से सुनते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो निश्चित ही लोग बाग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। आप अपने रीडर्स को कोई एक स्पेशल मैसेज जो देना चाहेंगे इस बुक के जरिए? ये किताब पढ़ के एक चीज़ मैं कह देता हूँ, कोई ध्यान से समझेगा कृष्ण के मन को, तो वो जैसा है उससे हजारों गुना पावरफुल हो जाएगा पढ़ते ही। जैसे अभी हमने सुना बाहर भी मतलब कमिंग सून आपकी बुक आ रही है, आई एम अ माइंड। माइंड तो बाजार में है और आई एम ऑल्सो अ टाइम। ये मतलब कैसे आप अपने आप को ये टाइम और माइंड सब? नहीं, मैं आई से लिखता हूँ, उससे कनेक्ट ज़्यादा होता है, उससे फिर कोई आपको गलती का चांस नहीं मिलता है। एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आई से लिखने के लिए बहुत परफेक्शन चाहिए सब्जेक्ट का, और क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं परफेक्ट लिखता हूँ, इसलिए मैं आई से लिखता हूँ। तो आपकी बुक आई एम अ माइंड ये सब कब आ रही है? माइंड ऑलरेडी बाजार में है। आने वाले समय में और कौन सी किताबें आपकी? बहुत आ रही है। मेरी तो इच्छा है कि सब कुछ बराबर चला तो करीब 200 किताबें करीब लिखूंगा। सर, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को कुछ एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, वो ऐसा चाहते हैं कि कोई उन्हें एनकरेज करे, तो आप स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा बुक लिखना चाहेंगे जो आई एम द माइंड बेस्ट है, स्कूल के कैरिकुलम में भी शामिल है, और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक है आई एम द माइंड। वर्ल्ड में इससे बढ़िया किताब नहीं हो सकती स्टूडेंट्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। है ना, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रैंड बुक लॉन्च पर। आई एम कृष्णा। कृष्णा एक ऐसे कहा जाएगा हमारे भगवान है जिनसे हर कोई जुड़ा हुआ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो बुक है, बुक से आप सभी क्या उम्मीदें रख रहे हैं, और दी दिखावट है उनसे आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं, और समाज में क्या असर पड़ेगा आप सभी? चूँकि बुक लिखी तो इन्होंने है, लेकिन पढ़ने वाले हम आप हैं, तो उम्मीदें हमारी ज़्यादा महत्व रखती हैं। श्री कृष्ण को आप भगवान कहें, अवतार कहें, या कहें कि मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ, उनसे हमने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन उनको समझना बहुत मुश्किल है। और हमें उम्मीद है कि ये पुस्तक, जो कि अभी तो शुरुआत है, मेरा ये ख्याल है कि ये अभी 5 भागों में बंटी है और कुल मिला के कोई 1500-1600 पृष्ठ की होगी। तो इससे हम कृष्ण को और कृष्ण की मनस्थिति को, कृष्ण की साइकोलॉजी को समझने की शुरुआत कर पाएंगे। ये अपेक्षा हम इस पुस्तक से रखते हैं। मैं कृष्ण को समझना चाहती हूँ। अब तक सिर्फ पूजती आई हूँ, मूर्ति पूजन में बहुत बिलीव किया है, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाई हूँ। और अक्सर ये माना है कि हमारे अंदर कृष्ण है, जो कि कृष्ण खुद कहता है कि मैं कण कण में हूँ। तो मुझे लगता है इस बुक को पढ़ने के बाद ये जो छोटी छोटी बातें हैं
जो कि हमसे मिस हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आती हैं, वो इस बुक से समझ में आएंगी। और मुझे लगता है गीता समझने में भी ये बुक मुझे काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड मुझे विश्वास है, उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इस बुक से प्रैक्टिकली लाइफ को लीड करने में, हैप्पी रहने में। सो जैसे कि भगवद गीता की बात करें वो अपने आप में एक संपूर्ण एक अध्ययन हो जाता है श्री कृष्ण के बारे में अगर बात की जाए तो आपने जो किताब लिखी है वो उसमें कितनी गहराई होगी श्री कृष्ण की शख्सियत से, उनकी सीख से, हर चीज़ से? ये किताब भगवद गीता का ही विस्तार है। ऐसा है, भगवद गीता में कृष्ण शब्दों में कह रहे हैं और इसमें कृष्ण वैसा जी रहे हैं। तो गीता का एक एक श्लोक ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और कौन सा श्लोक उन्होंने कब सीखा, कौन से अनुभव से सीखा और फिर उसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करा। तो गीता और कृष्ण अलग नहीं है। हम और हमारी बातें, हमारी साइकोलॉजी हमसे अलग नहीं हो सकती। हम गलत जी सकते हैं, झूठा जी सकते हैं, तो बात अलग है, ईमानदारी में अलग नहीं होती। आप कुछ कहना चाहेंगे श्री कृष्ण से? जी, मेरा शायद नज़रिया थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, क्योंकि मैंने मेरे लिए जिस तरीके से मैं बड़ा हुआ हूँ या जहाँ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग या जो एजुकेशन वो हमेशा से ये रहा है कि चाहे थिएटर हो या सिनेमा हो, कोई भी देश का सिनेमा हो, कृष्ण से बेटर कैरेक्टर कोई नहीं। आज तक का कोई भी प्रोटैगनिस्ट हो, कोई भी कैरेक्टर हो, वो बेस इसी कैरेक्टर में। He is the most interesting and the most complex mythological character ever written. And we should be very proud of our Indian mythology that we have created this character, or rather it's with us. मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, एंड मैंने हमेशा उसको उसी तरीके से अप्रोच किया। एंड आज जब ये किताब सर ने लिखी है दीप जी ने, और जब मिलेगी तो मैं इसको पढ़ूँगा, एंड आई थिंक इट विल हेल्प मी मोर एज एन एक्टर, इट विल हेल्प मी अप्रोच लाइफ इन अ डिफरेंट वे। I'm really looking forward to it. How well put. हमने ये भी देखा कि आज के ज़माने में श्री कृष्ण के ऊपर कई सारे धारावाहिक भी बन चुके हैं। हर तरह से उनको एक तरह से दर्शाने की कोशिश की गई है। आज के जनरेशन में जो दर्शाया जा रहा है श्री कृष्ण की कहानी को लेकर, आजकल देख रहे हैं कार्टून्स में भी दर्शाया जा रहा है, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ऐसा ख्याल है कि ये सारे प्रयास कृष्ण को और कृष्ण के दर्शन को जीवित रखने के प्रयास हैं। और जैसे आगे भी बताया गया दैट कृष्णा इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंट्रीगिंग कैरेक्टर वी हैव एवर हैड। तो कौन लेखक होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा जो इसे छोड़ना चाहेगा? और जैसे कि हमने कुछ अंश पढ़े मैंने, तो उससे भी उजागर हुआ कृष्ण के कई पहलू, और ये तो एक्सर्प्ट्स थे, अंश थे। पूरी पुस्तक में न जाने हम किस गहराई तक जाएंगे। दीप सर की किताब आई है आई एम काइंड, आपका एक जो वाक्य है बहुत ही पॉपुलर है, मैं एक समझ क्या कनेक्शन है? नहीं, समय आई नहीं है, लेकिन उसका जो किताब है उसका पहला वाक्य यही है कि मैं समय हूँ। टाइम अभी आ रही है नेक्स्ट, उसमें ही पहला वाक्य यही है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अभी तक मैं कह रहा था मैं समय हूँ, आज से मैं कहूँगा बड़े गर्व से कि मैं कृष्ण हूँ। बहुत बढ़िया। रतन जी, आपको पता है कि श्री कृष्ण की बहुत सारी कहानियाँ हैं, धारावाहिक है, उसमें हम आपको देख पाएंगे आने वाले समय में। संतोषी माँ को आप कर ही रही हैं, कोई आपका जो आइडल रोल है, जैसे कि राधा जी का हो गया या फिर जो भी कैरेक्टर? मैं आजकल फ्यूचर में नहीं, मैं प्रेजेंट में जीने लगी हूँ। जब से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया है, तो मैं फ़िलहाल प्रेजेंट में हूँ और बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर में। अगर समय में होगा कि मैं ऐसे शो से जुड़ पाऊँगी तो ज़रूर जुड़ सकूँगी। कोई आइडल रोल आप बताना चाहेंगी? मुझे लगता है कोई भी ऐसा किरदार जो कि इंसान को, महाभारत से और मैंने, बाप रे, हर इंसान, हर किरदार में कुछ ना कुछ खासियत है। ऑफ कोर्स कृष्ण मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत प्रिय हैं,
तो मुझे तो कृष्ण ही भाते हैं। अगर आपको विकल्प दिया जाता तो आप महाभारत का कौन सा चरित्र करते? मैंने अम्बा किया है और मुझे लगता है कि मैं उसका अगला जो शिखंडी का जो रोल था मैं उसको कंटिन्यू करना चाहती, जो मुझसे नहीं हुआ। शिखंडी हमारे लिए छोड़िए ना। अरे जी बहुत सही, शिखंडी हमारे लिए मैं वो कैरेक्टर करना चाहती हूँ। जी, कोई एक किरदार आपको निभाना हो महाभारत की, जितनी भी कैरेक्टर उसमें आपका फेवरेट कोई कैरेक्टर? जी देखिए, महाभारत बाय इटसेल्फ बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत स्क्रीन प्ले है, बहुत मज़ेदार स्क्रीन प्ले है उसका। जिस तरीके से उसका हर चैप्टर जाता है, हर चीज़ जो कही जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज़ इट बीइंग सेड, उसका प्रॉपर कनेक्शन है। अगर एक्टर के नज़रिए से, मैं सिर्फ और एक्टर के नज़रिए से कह रहा हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए, मैं अश्वत्थामा का कैरेक्टर करना चाहता हूँ। मुझे बहुत बेहतरीन कैरेक्टर लगता है, उसकी सोच, उसकी समझ, उसके इमोशंस, और वो एक लौता कैरेक्टर है जो खड़े होकर शायद अपनी भोलेपन में एक ऐसे ग्रेट व्यक्ति के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है जो कृष्ण है, और उनसे बात करता है। आपको शायद ये भी पता हो कि ये मान्यता है कि अश्वत्थामा आज तक जीवित है। बिल्कुल कहा जाता है मध्य प्रदेश में या कहीं पर, बट यू डोंट नो। हाँ, एक आखिरी सवाल। दीप जी, आपने जब आप बात कर रहे थे, आपने बोला था कि कोई भी महान हो, अपने जीसस क्राइस्ट की एग्जाम्पल की बात की, आपने बोला कि थोड़ा बहुत हज़ारों साल के बाद थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन जोड़े जाते हैं, कुछ और थोड़ा नमक मसाला जोड़े जाते हैं। तो मुझे पूछने का है, श्री कृष्ण जी हो या बुद्ध हो या जीसस क्राइस्ट हो, आपको लगता है कि ये जोड़ने से, ये थोड़ा मतलब ये नमक मसाला डालने से एक्चुअल एसेंस, दी एक्चुअल साइकोलॉजी उधर भी खो गई है? नुकसान हो रहा है ना। फायदा क्या होना चाहिए कि मैंने आज हरीश जी ने एक यात्रा करी है जीवन की, तो प्रकृति पक्षपात नहीं है, उसने मनुष्य बनाया है, मनुष्य ने अपने को महान बनाया है। तो हम मनुष्य का जो अचीवमेंट जो उसने पाया है वो कैसे पाया वो सीखने जैसा है। अब उसको हमने हवाई बना दिया कि किसी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, किसी ने ये कर दिया, तो हमको लगता है कि हमारे अप्रोच के तो बाहर हो गए। हमने अप्रोच के जो चीज़ अंदर है, हम मनुष्य हैं तो और मनुष्य हमारे अप्रोच के अंदर होना चाहिए, हम बाहर कर देते हैं, नुकसान हो जाता है। इसलिए आपने आलोचना की कुछ सीरियल्स की? नहीं, कुछ भी गलत है, हमारी अप्रोच के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी किसी ने बॉम्बे में स्ट्रगल करी, आज महान एक्टर बन गए, किसी ने क्या करा, तो उनकी क्रेडिट है। फिर हम भाग्य में लिख दें, ऐसा कर लें, गलत बात, हम सीख नहीं पाते उनसे। इंग्लिश में एक शब्द है डेइफिकेशन। डेइफिकेशन। You take a person but you forget really the essence and you deify the thing. What is your opinion? Anyone across religions, across? मेरा ऐसा ख्याल है कि समय आ गया है कि डीफाई किया जाए, और ये हर एक धर्म के गुरु कहो या देवता कहो, महापुरुष कहो, उनके साथ जुड़ गया है। मेरा ये विश्वास है कि आज से 1 या 2 सदी के बाद आप पुस्तकों में पाएंगे कि एक कोई गांधी थे और वो बड़े चमत्कार करते थे, उनकी यूँ करने से पूरे के पूरे ब्रिटिश चले गए। जो हाँ, तो अगर हम और इसकी वजह से कुछ धर्मों में, कुछ महान धर्मों के प्रति हम हिकारत की नज़र से देखते हैं। कैसे कभी हो सकता है कि भाई कृष्ण ने इतने बड़े कालिया नाग का हनन कैसे किया? हम जानते हैं नहीं हो सकता। तो इसका सिंबलिज्म हमें इससे अलग करना है। द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, लेकिन जब उससे पूछा गया था कि तुम्हें हु विल बी योर आइडियल हस्बैंड, तुम्हें उसमें क्या चाहिए, तो उसने इतने सारे गुण गिना दिए कि उससे कहा गया कि तब तो तुम्हें 5 के साथ शादी करनी पड़ेगी। और अगर कहानी न गढ़ें तो आप मैसेज तक पहुंच नहीं सकते। दूसरी तरफ मुश्किल ये भी है, और हम आप चाहे जितना रैशनली देखने की कोशिश करें, against 2 of us there might be 2 million who will shut us up.
My rational mind asked you the question. So de-deification is necessary, but I don't know when that will happen. मैं एक चीज़ हरीश जी की बात में कहना चाहूँगा, इन्होंने इतनी बढ़िया बात कही। देखिए 200 साल बाद क्या जो उन्होंने होने वाला है वो कहा कि गांधी जी के पास छड़ी थी, मतलब ये हो गया कि हमारे पास छड़ी नहीं है तो हम गुलामी से हैं। तो हम क्रेडिट जब छीन लेते हैं तो हम सीखना बंद हो जाते हैं। यही मेरा कहना है कि हम क्रेडिट छीन, आज हरीश जी की आवाज़ हम समझो इतने सालों से सुन रहे हैं और आज वैसी की वैसी है, तो क्रेडिट देंगे कि उनके भाग्य में था, भगवान ने बोल दिया तेरी आवाज़ को कुछ नहीं होगा और मेरी आवाज़ को हो गया। अरे मैंने भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, दैट्स व्हाट पूरी बात है। जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल वही बात है। थैंक यू वेरी मच।